Okay, so hey there, and today we are going to understand probability. It won't hurt us understanding the definition of probability. We all know probability. I have told you what probability is. We have discussed how do you calculate the probability, what is the basic formula to calculate probability. But again, as I said previously, it won't hurt you guys just to understand the definition of probability, and then you'll know a bookish language also what does it says, and then we'll move on to the examples part of how do you solve the probability. Well, before solving the problem, we'll just give a quick look for a official definition of probability. So let's say if an experiment has n mutually exclusive, equally likely and exhaustive cases. Now see, all these matters. You see, if I take a bit away from you this definition, so mutually exclusive event, equally likely event and exhaustive event. So that is what they are saying us, that if in an experiment has n mutually exclusive event, if they are equally likely and exhaustive cases also, as in if I take a dice and I roll it, then this is the possible outcomes from the sample, or this is the possible outcomes, and now from this possible outcome there might be one there. If I throw a dice, it is a chance that I'll get 1, there is a chance I'll get 2, 3, 4, 5, 6, or there is a chance that I will get a number greater than 2, greater than 3, less than 6, greater than 5, greater than 1, less than equal to 2, any of those. So, and these events are mutually exclusive event, as we all know, and also they are equally likely to happen, whereas they are exhaustive. Exhaustive का अपन ने यहीं पे पढ़ा था, collectively exhaustive नहीं बोलूंगा मैं. Exhaustive if the total number of all possible outcomes of an experiment, if it is a total number of all possible outcomes, जैसे कि all possible outcomes आ रहे थे मेरे डाइस रोल करने पर, इन सच केस. सो ऐसा कभी भी जब हो रहा है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट में कैरी आउट कर रहा हूं और उस एक्सपेरिमेंट में ये सब चीजें पॉसिबल हो रही है, लेकिन किस में से ये सब चीजें किस में से पॉसिबल हो रही है? आउट ऑफ which m are favorable to the happening of event A. जैसे कि क्या, जैसे कि मैंने डाइस रोल किया तो मेरे फेवर में क्या था? ग्रेटर देन 2 के लिए था, लेस देन 2 के लिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए था, लेस देन इक्वल टू 3 के लिए था, जो भी था मेरे फेवर में, इसमें से मेरे फेवर में जो था इवेंट को होने के लिए, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट इवेंट ए उन्होंने नाम दिया, थ्रोइंग अ डाइस को उन्होंने नाम दिया ए, is denoted by P of A, and is defined as, let me just draw a nice square bracket so that it gets highlighted, and is defined as P of A, that is the probability of A, that is the probability of happening event A, is equal to m over n, m is the number of cases, favorable to A, whereas n is the total number of cases. इसका division will give us the probability of finding out the chances of happening a certain event, Let me just fill it out. Exactly. And now there is a ये अपन ने पढ़ा है, ये अपन ने कल पढ़ा था. Like I have written probability of, let's say, head. Probability of head was nothing but total number of outcomes, and number of chances, or number of let's say, let's say possibilities, number of possibilities. Even chances is also there. Possibility to which meet, or which number of possibility meet our condition. So that is what we have understood yesterday, and that is what we have
understood today also. So there is so there is no as such difference. Anyhow, let's just move on to the note. For that, let me just draw a neat bracket over here. Exactly. Now, note number 1 says that focus on note while I'm focusing on drawing this, coloring this. Focus on note that the probability of an event which is certain to occur is 1. Probability of an event, I'm reading it again because we have talked about this. Probability of an event which is certain to occur is 1. Which is certain to occur is 1. And the probability of an event which is impossible, probability of an impossible event is 0. I'm sorry because I was a bit busy in coloring, which I didn't do it properly. Anyways, so ये अपने को पता है एक 100% श्योर होने वाली चीज की प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1 और एक इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 0. Exactly. Now, enough of this time pass. तुमको भी बोर हो रहा होगा, मुझे भी हो रहा है अब. Why don't we just move on with the example? But before that, just a bit. Probability occurrence of an event lies between 0 and 1, both inclusive. We all know that. अपन ने पिछले सेशंस में इसका एक एग्जाम्पल भी देखा है कि probability always lies in between 0 and 1, inclusive of 0 and 1. एंड वो रिजल्ट के साथ में बताया था मैंने डाइस रोल का. ओके, सो नाउ जस्ट बिगिन विद द एग्जांपल स्टफ. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? ये तो एग्जांपल कर चुके हैं अपन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस? वेल, सिंगल थ्रो जब मैं कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सिंगल थ्रो में जब कर रहा हूं मतलब मेरे पास में पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 और 6 ही है. मैं एक ही सिंगल थ्रो कर रहा हूं, तो सिंगल थ्रो जब मैं करूंगा तो ये 6 में से कोई भी एक आउटकम आएगा. ओके, व्हाई एम आई फोकसिंग ऑन दिस इज आगे तुमको उस बात का अंदाजा आएगा. ओके, सिंगल थ्रो क्या, यानी मेरे पास में सिर्फ इतनी ही पॉसिबिलिटी है. एनी हाउ, नाउ नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर कौन सा है? 2 4 and 6. सो व्हाट डू आई डू इज I do write over here. I'll write over here. What do I do is I write probability of even number, let's say E1. Okay, it is equal to, well, total number of outcomes, we know the total number of outcomes is 6, whereas the even numbers favorable to us, or possibility of getting even number is 2 4 and 6. So let's say write down 3, and that is what our answer is. Exactly 1/2. 50% chances are there of getting an even number, because टोटल सेट में ही 6 नंबर थे. ये सेट में 6 नंबर थे और 6 में से कोई भी 3 में से एक, ये कोई भी 3 आ सकते हैं. तो 6 में से कोई भी 3 आ सकते हैं. इसका मतलब क्या 50% चांसेस है मेरे पास में वो इवेंट होने का. एंड दैट इज हाउ, अगर आपको कोई बोले कि भाई मैं जब डाइस रोल कर रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी बता कि मेरे को इवन नंबर ही मिलेगा, तुम बोलोगे इट इज एक्जैक्टली 50% तेरे पास में चांस है भाई जीतने का, और तुम बोलोगे एक्जैक्टली 50% चांस है तेरे पास हारने का. क्योंकि अपोजिट एज इन अगेंस्ट, पी के अगेंस्ट में यहां पे आ रहा है ऑड नंबर, इवन के अगेंस्ट में आ रहा है. इवन के अगेंस्ट में क्या आ रहा है? ऑड नंबर. एंड उसका ऑड नंबर का भी प्रोबेबिलिटी एक्जैक्टली 3/6 ही रहेगा. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस गाइज, आई डू नॉट नो. Yeah, I guess it's been fixed and it is 1/2. So you can see exactly 50% chances है ये happening का और ये not happening का. Okay, not odd is equal to even, and not even is equivalent to happening of odd. So ये बात का मतलब अभी नहीं समझेगा तुमको, पर बाद में धीरे धीरे जब अपन चीजें इन डिटेल पढ़ने चालू करेंगे, when we'll dig in more detail, अपन और डिटेल में डीप करना चालू कर देंगे. when we dig deep, तब अपने को इन सब चीजों का, बातों का अंदाजा आने लगेगा. So when I say that what is the probability of not even, then it is 1/2, and what is the probability of not odd, again it is 1/2. Still there is a lot of difference. It makes a lot of difference. Anyways, we'll move on to the next question now. It's really simple. You know, these are really simple questions. It will not take much of a time. Okay, what is the probability of getting a tail in a throw of a coin? Okay, it's really simple. Well, number of outcomes are, well, head or tail.
Apart from these two things, there are no possible outcomes. Okay, so number of outcomes, let me just come over here again. Okay, now number of probability of getting tail is going to get equal to, well, पॉसिबल आउटकम्स आर 2, एक तो हेड नहीं तो टेल, और उसमें से मेरे को क्या चाहिए, टेल. सो उसमें से होने वाली चीज है सिर्फ एक ही है. सो एग्जैक्टली 50% चांसेस है. ये सब अपन ने क्वेश्चन कल करके रखा है. दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चंस जिससे प्रोबेबिलिटी की शुरुआत होती है. ए बैग कंटेन्स 6 व्हाइट बॉल 9 ब्लैक बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल? यू कैन डू दिस, यू कैन ऑल डू दिस. ऐसे ही ठीक एक क्वेश्चन अपन ने कर रखा है, उसमें थोड़ी डिटेल में थे ब्लैक, उसमें बॉल्स थोड़े ज्यादा थे, पर ऐसा ही एग्जैक्टली क्वेश्चन अपन ने किया. आई फील लाइक यू कैन डू दिस, I feel like you can do this क्योंकि वो exactly similar है वो क्वेश्चन को. Anyways, moving to the next question. What is the probability that if a card is drawn at random, from an ordinary pack of cards, the details are really important when you calculate the probability. The details are really important when you calculate the probability. Okay, it is when you आगे मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन. It is a red card, a club, one of the कोर्ट कार्ड्स. नाउ कोर्ट कार्ड का मतलब होता है, कोर्ट कार्ड का ही मतलब ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, तो क्या उसको बोलते हैं, जैक, क्वीन, किंग. कोर्ट कार्ड्स मतलब होते हैं जैक, किंग और क्वीन. ओके, और ये तो पता ही रहेगा तुमको, रेड कार्ड और क्लब ये तो क्या रहता है. ये कोर्ट कार्ड अपन जनरली हिंदी में अपन कोर्ट कार्ड वो सब बोलते नहीं है. एनी हाउ आई विल जस्ट bring it up over here. Yes, now we'll just move on to the example. Okay, I need to first find the probability. first case नहीं है मेरे को, पहले A में. अच्छा, ये different cases थे पूरे, ठीक है ना, ये different cases थे. उसमें उन्होंने पूछा है a red card. अच्छा, पैक ऑफ कार्ड्स है ये पैक ऑफ कार्ड है. इसमें कितने कार्ड रहते हैं टोटल? 52 कार्ड्स रहते हैं. एग्जैक्टली. अब ये 52 कार्ड्स में से उन्होंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी रेड कार्ड आने की. वेल, रेड कार्ड, और अब ये जो 52 कार्ड्स होते हैं अपने, यू ऑल हैव नोटिस्ड, अभी नहीं भी क्या रहेगा तो मैं तुमको बता देता हूँ. 52 कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज रेड कार्ड एंड वन इज ब्लैक कार्ड. ओके, रेड कार्ड्स आर 26 whereas black cards are 26. Turns out to be 52. Okay, now the red cards contains further two classification. Red card contains further two classification, each containing 13 pack of cards, and black type of cards contain further classification of 13 each. So the red cards, which includes heart and diamond, over here the club and the I guess spades. वो चीड़ी और क्या बोलते हैं उसको, इसको लाल पान बोलते हैं हार्ट को, इसको काला पान बोलते हैं इसको ईट बोलते हैं. सो एनी हाउ, वट एवर दे आर, सो दैट इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ द 52 कार्ड्स. 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब, 13 spades. And now we have been asked that what is the probability of getting a red card. So well, for starters, the total number of outcomes कितने हैं मेरे पास में? Total number of outcomes is 52. Total number of outcome is 52, क्योंकि 52 कार्ड्स में से कोई भी रेड कार्ड, कोई भी कार्ड आएगा ना, तो टोटल 52 कार्ड्स है मेरे पास में. आउट ऑफ विच रेड कार्ड्स मेरे पास में 26 है. रेड कार्ड मेरे पास में 26 है. सो आई जस्ट राइट डाउन 26. वी आर नॉट कंसर्न कि हार्ट आ रहा है या डायमंड आ रहा है. वी आर नॉट कंसर्न विथ हार्ट है कि डायमंड है. वी आर कंसर्न विथ द 26 रेड कार्ड्स एंड वी आर डन. सो इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, हाउ मच, 1/2. सो एग्जैक्टली 50%, राइट. और ये आना ही चाहिए था 50%, बिकॉज the red 52 cards is completely divided into two types, एक तो red और एक black. तो possibility of getting red is exactly 50%. Now next probability of getting a club है ना, club का ये ना, एक club. Well, now I'll just change the color for P. Probability of getting a club always comes in black, so I'll just use the black over here to write down. There are 52 for sure, I know. And for club, okay, and for club there is
13 कार्ड्स. So there are 13 cards जिसमें से वो चांसेस रहेंगे. So how many chances are there? So 13 over 52 which is exactly equal to 1/4. And you all can see, अब तुम यहाँ पे भी देख सकते हो that ये जो कार्ड्स है ये exactly 4 इसमें बटे हुए हैं, exactly 4 इसमें बट चुके हैं. एंड नाउ ये exactly 4 में बट चुके हैं. इसका मतलब क्या होगा कि हर एक के आने के चांसेस क्या होंगे? 1/4. जस्ट द सेम केस ऑफ वो एग्जाम्पल क्लासिक है, वो मैं बाद में लूंगा. एनीवेज उसको भूल जाओ. तो एग्जैक्टली ये 52 कार्ड्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड. और इसलिए एग्जैक्टली क्लब आने का चांसेस 1/4. क्लब आने का चांसेस 1/4. एनीवेज नेक्स्ट एंड लास्ट. शिट मैन, कितना परेशान कर रहा है ये. सी, well, we all can see now getting a court card, a court. अब here's the deal. हार्ट में भी कोर्ट कार्ड रहते हैं 3 कोर्ट कार्ड्स हार्ट के. डायमंड के भी 3 कोर्ट कार्ड रहेंगे. सिमिलरली क्लब के भी 3 कोर्ट कार्ड्स रहेंगे एंड स्पेड के भी 3 कोर्ट कार्ड्स रहेंगे. मतलब apart from ace 1 2 apart from ace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these are the, I'll just write down in different color now, these are the court cards J, Q and K, Jack, Queen and King. ये जो J K Q है ये ओके सॉरी I wasn't aware. हाँ, ये जो JKQ है ये तीनों में प्रेजेंट रहते हैं. रेड में भी चारों में प्रेजेंट रहते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड. जिसने पत्ते नहीं खेले होंगे या जिसको पत्तों का ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं मैं. सो एनीवेज इसका मतलब ईच ऑफ दीज सब डिविजन कंटेन्स 3 कोर्ट कार्ड्स एंड दे हैवंट स्पेसिफाइड अस कि कौन से कोर्ट कार्ड है अपने पास में, रेड के है या ब्लैक के है या हार्ट के है या डायमंड के है या क्लब के है या स्पेड के. दे आर आस्क्ड अस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कोर्ट कार्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टास्क इज टू फाइंड आउट टोटल कोर्ट कार्ड कितने हैं. आउट ऑफ दिस 52 cards how many court cards are there? So in total court cards are there 3 plus 3 plus 3 plus 3, or you can rather say it as 3 times 4. Repetitive addition is also equal to multiplication. So 3 times 4 is equal to 12. So there are 12 court cards out of these 52 cards. And now I have been asked to find the probability of let me just make some space. Court card, and that is going to be equal to 12 over 52, which is going to be equal to 3 by 13. So out of each 13 there are 3 cards. So possibility की ये है कि हर 13 में से 3 चांस है आने का, and this is the exact answer. और वो अपनी बात को सफाइज भी कर रहा है. और ये लाइक इट्स अ गारंटी, इट्स अ वेरिफिकेशन पार्ट दैट हर 13 में 3 कोर्ट कार्ड है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव गॉट 3 by 13. अगर यहां पे डिनोमिनेटर में 14 16 आ जाता है या न्यूमरेटर में 4 5 6 कुछ भी आता, देन आवर आंसर इज रॉन्ग. बट एग्जैक्टली 3 over 13 आया है, वो अपने को बताता है कि इन आउट ऑफ एवरी 13 कार्ड्स देयर आर 3 कार्ड्स ऑफ Jack, Queen and there are 3 cards Jack, Queen and King respectively. So that is how you find the probability of getting a Jack, a court card, club card or a red card. Okay, so we'll just move on to the next question now. Okay, so now what is the probability of throwing a number greater than 3 with an ordinary dice है, उससे आपको डाइस जैसे रोल करके थ्रो करना है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला है क्या? नहीं, दे हैव जस्ट सेड नंबर ग्रेटर देन 3. ओके, सो विल जस्ट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस. एक डाइस थ्रो करने के बाद में पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 and 6. Well, out of these I have been asked number greater than 3. So number greater than 3 मतलब let's say number greater than 3, that is I have been asked. And numbers greater than 3 कौन से हैं? 4 5 and 6. So basically I am finding out the probability
आई एम फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेट्स से n greater than 3 का, let me just write out in different color now, n greater than 3 का, and that is going to get equal to, ये तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे मेरे पास में 6, एंड मेरे को बोला गया था कि नंबर ग्रेटर देन 3 चाहिए. सो नंबर ग्रेटर देन 3 मेरे ये टोटल आउटकम्स में से, मेरे ये सैंपल स्पेस में से 4 है, 5 है एंड 6 है. 4 है, 5 है और 6 है, thus giving me exactly 3 numbers, and hence my probability of getting number greater than 3 when I throw a dice, ordinary dice, okay, ordinary dice, is 1/2. Exactly. 6 नंबर थे, 6 में से कोई भी 3 आ सकता है, तो मेरे पास 50% चांस है आने का और 50% चांस है नहीं आने का. So that is how you find out the probability of a dice, of a probability, how you can find that is how you find the probability. Next question. Okay, now what is the probability that a leap year what is the probability that a leap year selected at random will have 53 Sundays? क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी. यहां पे से तुमको पता चल रहा है कि नॉट जस्ट हियर बट अपन कहां पे, कौन से स्केल पे प्रोबेबिलिटी को यूज कर सकते हैं. दिस इज द स्केल दैट, अब तुम्हारा बेसिक स्केल से थोड़ा ऊपर पहुंच गया अपन. अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है लीप ईयर में का, दैट लीप ईयर, कोई भी लीप ईयर में अगर रैंडम में पिक करूं तो इट विल हैव 53 Sundays. It will have 53 Sundays. So let me just make some space and then we'll move on to the solution. Okay, so here we are, a lot of space. Let's say in a leap year, पहली बात तो in a leap year how many days are there? Well, there are 366 days. And how many weeks are there? Well, how many weeks are there? 52 weeks are there, but with 2 extra days. यहां पे अपने पास में 2 एक्स्ट्रा डेज रहते हैं, 52 वीक्स एंड 2 एक्स्ट्रा डेज. अब ये 2 एक्स्ट्रा डेज कौन सी पॉसिबल वे में आ सकते हैं अपन वो देखेंगे. सी यहां तक के तो ठीक था. इफ यू वांट यू कैन मल्टीप्लाई 52 by 7, you will get the exact amount of days, that will be 364. बट लीप ईयर आने की वजह से क्या हो रहा है, 366 डेज आ रहे हैं. और अब मेरे को पता है कि 366 डेज मतलब 52 वीक्स एंड 2 डेज, 52 वीक्स एंड 2 डेज. अब ये 2 डेज में से, अब ये 2 डेज जो है उसमें से संडे जो आएगा दैट विल गिव मी द एक्स्ट्रा संडे. एग्जैक्टली वो मेरे को केस में पता चलेगा कि मतलब एग्जैक्टली एक्स्ट्रा संडेज कितने हैं. ओके, सो मेरे को कितने संडे चाहिए एक्चुअली. I want 53 Sundays. I want 53 Sundays. So here I have 53 Sundays at random. अगर मैं कोई एक लीप ईयर एट रैंडम सेलेक्ट करता हूं, सो उसमें से मेरे को 53 संडेज कैसे मिलेंगे. सो ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज है वो मेरे को बताएंगे कि कितने हैं पॉसिबल केसेस. ओके, सो वेरी फर्स्ट पॉसिबल केस इज दैट पहले संडे आएगा. ये 2 एक्स्ट्रा डेज कौन से, तो संडे एंड मंडे. ओके, next that might be Monday and Tuesday. Next that might be Tuesday and Wednesday. Next that might be Wednesday and Thursday. Let me just write down TH for Thursday. Okay, next Thursday and Friday. Next Friday and Saturday, and lastly 7th Saturday and Sunday. So out of this you can see that इसमें से कोई भी 2 डेज आ सकते. ये 7 में से, ये पॉसिबल 7 में से, ये पॉसिबल 7 आउटकम्स में से कोई भी 2 डेज मेरे पास में यहां पे आ सकते हैं एट रैंडम. लेकिन मेरे को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है. आई नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर 53 संडेज. एंड संडेज इंक्लूड करने वाले डेज कौन से. संडेज इंक्लूड करने वाले डेज है, चलो पहला वाला और ये आखिरी वाला 7. सो देर आर 2 आउटकम्स, देर आर टोटल 7 आउटकम्स. ये सैंपल स्पेस मेरा 7 का है क्रिएट. उसमें से देर आर टू डेटा विच
आर इन माई फेवर, क्योंकि मेरे को 53 संडे चाहिए थे और संडे सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है. सो ये जो दो एक्स्ट्रा है, एक तो संडे मंडे होना चाहिए, नहीं तो सैटरडे संडे होना चाहिए. मतलब एक लीप ईयर ऐसा लीप ईयर रहेगा, वो लीप ईयर ऐसा लीप ईयर रहेगा जिसमें 52 वीक्स रहेंगे और जो आने वाले 2 दिन रहेंगे वो 2 दिन एक तो संडे मंडे रहेंगे या तो सैटरडे संडे रहेंगे. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, well I can write 53 Sunday, let me just write down 53 sun, 53 sun, no not 53 sun, 53 Sunday, 53 Sunday. Well, if you are smart then you can give it a name M. So probability of finding M, it's really simple in that case. Probability of finding M is going to get equal to, well, total number of sample space was 7, जिसमें से मेरे फेवर में कौन सी 2 चीज है? आउटकम 1, मतलब पहला नंबर 1 और आखिरी नंबर 7. सो ये दोनों यहां पे आ जाएंगे एंड दैट इज हाउ आई विल गेट द प्रोबेबिलिटी. सो 2/7 is the chance is a chance that I will have 53 Sundays if at random I select a leap year. If at random selected at random. So that is how you do. It's really simple when you have the logical or conceptual knowledge with you that, well, I have to pick a leap year. So let me just pick a leap year. Okay. When I'll pick a leap year, then how many weeks do I have? Well, I have 52 weeks. Well, out of these 52 weeks, do they exactly fit in 366 days? Well, they don't. So it means that 52 weeks gives me 344 days. And thus leaving 2 extra days with me. And these 2 extra days, इसमें से कोई तो 1 डे आएगा, कोई तो 2 डे आएंगे बेसिकली, कोई तो 2 डे आएंगे और वो 2 डे में से संडे मंडे होगा या तो सैटरडे या संडे होगा. इज बिकॉज जैसे मैं ये 2 डेज में से कोई भी एक डेज सिलेक्ट करूंगा, मेरे को वो 53 संडेज देगा, 53 संडेज देगा, संडे मंडे या तो सैटरडे संडे. अगर अपार्ट फ्रॉम दीज 2 अगर कोई आ गए तो वो लीप ईयर में 53 संडेज नहीं रहेंगे, बट 53 मंडे या ट्यूसडे वेडनेसडे कोई भी रह सकता है. यहां तक के मंडे से लेके सैटरडे तक के कोई भी रह सकता है, जस्ट बिकॉज दे हैव आस्क्ड अस 53 संडेज, आई हैव सिलेक्टेड 1 and 2. मतलब मेरे फेवर में कि 2 केसेस है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. सो वी विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. What is the probability of getting what is the probability of getting a total of more than 10 in a single throw with 2 dice? Now here's the thing. 2 dice. अब डाइस कितने थ्रो कर रहे हो लोग? 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं. अब यहां पे पूरा सैंपल स्पेस बदल जाता है तुम्हारा. नाउ कैसे? अब वो तुम देखो अच्छे से. For starters, I had a single dice. Okay, and now I have 2 dice. Okay, now the thing is that I will roll these 2 dice together. When I will roll these dice or throw these 2 dice टुगेदर, इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरे पॉसिबल आउटकम्स कैसे आ रहे हैं. ये देखो, ये 1 और ये 1 इकट्ठा आ जाएगा क्योंकि एक साथ गिर रहे तो 2 आउटकम्स मिलेंगे. फिर 1 और 2 आ सकता है, 1 और 3 आ सकता है, 1 और 4 आ सकता है, 1 और 5 आ सकता है जो ये बैक साइड में है 5. एग्जैक्टली, लेट मी जस्ट 1 और 6 आ सकता है जो ये नीचे के साइड पे रहेगा बॉटम में. 1,6 आ सकता है. नाउ एम आई डन ओवर हियर? नहीं, अभी यहां का 1 हो गया. व्हाट इफ यहां के 1 के जगह पे 2 आ रहा है और ये वापस रोटेट हो रहा है. 2,1, 2,2, 2,3. ये फिक्स, यहां का फिक्स है. समझो 2 डाइस अगर तुम थ्रो कर रहे हो तो एक में 2 आएगा तो दूसरे में कुछ ना कुछ नंबर आएगा. तो आई एम कंसिडरिंग कि एक फिक्स है फिलहाल. ओके, फिर 2,4, 2,5, 2,6. ये ऐसा कब तक के चलेगा? ये चलेगा 3, 4, 5, 6. यहां के 3 के लिए भी, यहां के 4 के लिए भी, 5 के लिए भी और ये बॉटम में 6 के लिए भी. मतलब 3 के लिए भी आएगा, 4 के लिए भी आएगा, 5 के लिए भी आएगा,
6 के लिए भी आएगा। अभी अपन बस एक ही बार लिखेंगे और इसके बाद कभी नहीं लिखेंगे, बट अपने को क्लियर पिक्चर मिलना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, इसलिए। सो लेट मी जस्ट फिल अप दिस एंटायर थिंग एंड बी बैक, आई विल बी बैक इन मिनट and then we will discuss more properly. So this is the total number of sample space, or this is the total number of possible outcomes. ये dice, let me just make this of a different color. ये एक ब्लैक डाइस है और एक रेड डाइस है। ब्लैक डाइस जब मैं थ्रो करूंगा तब मेरे ब्लैक डाइस में आ रहे हैं समझो 1, ये 1 है सारे, ओके। या फिर बाद में मैं एक तो ये पॉसिबिलिटी आ सकती है 1-1 की, या तो फिर 2-2 की पॉसिबिलिटी आ सकती है, इसमें से कोई भी एक पॉसिबिलिटी आ सकती है। एंड आउट ऑफ दिस कोई भी एक मेरा आ सकता है, जैसे कि अभी मैंने पूरा कलर चेंज करके वापस लिया है। आई वर्कड अ लॉट हार्ड ऑन दिस। सो यस, सो यू विल नो, ये अभी मैं समझो मैंने डाइस रोल किया एक साथ ब्लैक और रेड, और पहले रोल में आया 1,1, नेक्स्ट रोल में आया लेट्स से 6,5, नेक्स्ट रोल में आया 1,5, नेक्स्ट रोल में आया 2,2। इसमें से कोई भी आ सकता है, इसमें से कोई भी एक आ सकता है। एंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? वेल पहले इसमें मेरे पास में 6 नंबर है और दूसरे इसमें 6 नंबर है, और पहले इसमें के कोई भी 6 आ सकते हैं, और दूसरे इसमें के भी कोई भी 6 आ सकते हैं, और इनका होने वाला है मल्टीप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि दे आर टुगेदर, इवेंट्स आर हैपनिंग टुगेदर, एंड दैट विल इन टर्न विल गिव मी 36 total number of outcomes, and you can count 1 2 3 4 5 6 times 6 is 36, 6 times 6 is 36। कैसे? 6 rows and 6 columns are there, या तो तुम इंडिविजुअली काउंट करो if you have that much of time। well, total number of our sample space, ये मेरा हो गया सैंपल स्पेस बोलो, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सैंपल स्पेस नहीं बोलूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, मेरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मेरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज नथिंग बट माय सैंपल स्पेस। सो आई एम नाउ गोइंग टू इरेज दिस एंटायर सैंपल स्पेस। ओके, ये सिर्फ तुमको बताने के लिए था, एक बार ही बताऊंगा मैं, अब इसके बाद में कभी भी 2 डाइस का आया तो नहीं बताऊंगा, 3 डाइस रहा। सो वेल, आई विल मल्टीप्लाई 6 अगेन विथ इट। लेट मी जस्ट ड्रॉ द डिफरेंट कलर्स नाउ। वेल, ये 6 और ये मल्टीप्लीकेशन, सो ये टोटल अलग हो जाएगा फिर। ओके, सो डिपेंड्स, जितने भी बार रहेंगे तो उतने से मल्टीपल से उसका सैंपल स्पेस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में ये पूरा डेटा है। कोई भी रोल करने पे तो एक में 1 आएगा तो दूसरे में 6 आ सकता है, अगर पहले दूसरे में 4 आ रहा है तो पहले में 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आउट ऑफ दिस। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 36, एंड दैट इज हाउ आई एम इरेजिंग दिस एंटायर सैंपल स्पेस, बिकॉज इट्स नन ऑफ आवर यूज नाउ, वी हैव नोन अबाउट दैट। और अपने को ये लॉजिकली पता रखना है, ये सैंपल स्पेस को याद नहीं रखना है मेरे को। ओके, सो एनीवेज, नाउ दैट आई हैव बीन आस्क्ड दैट कि अगर डाइस रोल करता हूं मैं तो मेरे को ये पता करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 10। लेट मी जस्ट राइट डाउन ओवर हियर। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 10 मतलब टोटल ऑफ मोर देन 10 है ना, मतलब ये 2 डाइस के ऐसे नंबर्स जिसका टोटल मोर देन 10 हो रहा है, टोटल मोर देन 10, इसको मैं नाम दे देता हूं n। ओके, सो आई एम फाइंडिंग आउट बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ n दैट इज गोइंग टू गेट इक्वल टू नाउ दिस। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे भाई मेरे पास में? 36, दैट आई नो। नाउ आई नीड टू फाइंड ओनली दोज नंबर्स। डाइस मैंने समझो ये डाइस रोल किया तो ये डाइस के ऊपर आया 1, ये डाइस के ऊपर आया 1, और ये डाइस के ऊपर आया 2। 1 और 2 का एडिशन कितना हो रहा है? 3। इज इट ग्रेटर देन 3? नो। ग्रेटर देन 10? नो। सो आई विल नॉट टेक 1 and 2 इनटू कंसिडरेशन। मतलब ये जो 1,2 था मेरा, 1,2 था, ये कंसिडरेशन में नहीं आएगा। लाइकवाइज मेरा ये 2,1 भी कंसिडरेशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी एडिशन इज सेम एज दैट ऑफ इसका एडिशन। सो हेंस आई एम गोइंग टू एलिमिनेट ऑल दोज नंबर्स जिनका सम लेस देन 10 है। सो ऐसे कौन से नंबर है जिनका सम मोर देन 10 आ सकता है? वेल फॉर स्टार्टर्स में बड़े से देखता हूं, दोनों पे अगर 6 आ गया तो, फिर दोनों पे अगर 5 आ गया तो नहीं, ये नहीं चलेगा, 5 नहीं चलेगा, मतलब 5 6 चाहिए मेरे को। ठीक है, एक पे 4 दूसरे पे 6 वेल चलेगा, एक पे 6 दूसरे पे 4 वेल चलेगा, एक पे 5, हाँ एक पे 6 दूसरे पे 5 ये भी चलेगा। बाकी है क्या कोई?
6-4 4-6 हो गया, 5-6 6-5 हो गया, 6-6 हो गया. हाँ, और इसके अलावा आई डू नॉट सी एनी डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो मेरे को यहाँ पे देगा. सो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो कि मेरे को मोर देन 10 देंगे वो ये है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आ रहे हैं मेरे, 6 आने चाहिए एक्चुअली. इसमें से 2 तो एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि दिस इज इक्विवेलेंट. हाँ, सो 3 रहेंगे. हाँ, 6,4 एग्जैक्टली 3 ही रहेंगे. हाँ, 5 आ रहे थे. यस. सो नाउ अभी मेरी एक बात सुनो अच्छे से. मैंने किस 2 को एलिमिनेट कर दिया? मैंने 6-5 को एलिमिनेट कर दिया और मैंने 4-6 को एलिमिनेट कर दिया. क्यों? क्योंकि दीज आर मीनिंगलेस व्हेन आई एम कंपेयरिंग टू फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी. भाई पहले पे 6 आया, दूसरे पे 4 आया, उससे क्या लेना देना है? आई एम कंसर्न विथ टोटल शुड बी मोर देन 10. और एक बार अगर यहाँ पे टोटल सेटिस्फाई हो गई, देन आई एम नॉट कंसर्न विद दैट. और आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे 6,4 नहीं आएगा. No, I did mistaken. Yes, it will affect. Yes, it will affect. No, it will affect. Definitely affect करेगा ये, क्योंकि अपनी डाइस चेंज हो जा रही है. Yes, अपनी डाइस चेंज हो जा रही है. यहाँ पे कॉम्बिनेशन के जैसा नहीं चलेगा कि द ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे ऑर्डर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. माई मिस्टेक, रियली सॉरी फॉर दैट. यस. सो नाउ 6,4 4,6 नहीं आएगा क्योंकि इट इज नॉट मोर देन 10. सो ओनली नंबर्स विच आर मोर देन 10 आर 6, 5, 6, 6, 5 एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स जो मेरे को चाहिए थे. आउट ऑफ दिस 36 एंड दोज आर ओनली 3. कैसे? 6, 5, 6, 5 एंड वी ऑल नो अब ये 6, 5, 6, 5 कैसा है. नाउ जो मैंने जो कंडीशन कंसीडर कर ली थी वो कॉम्बिनेशन के लिए सही है. व्हेन आई एम जस्ट सिलेक्टिंग आउट, व्हेन आई एम कंसीडरिंग द डाइसेस, दीज 2 आर डिफरेंट डाइसेस, मेरे को वैसे कंसीडर करके 6, 5 एंड 5, 6 आर 2 डिफरेंट एंटिटीज ऐसा कंसीडर करना ही पड़ेगा. एग्जैक्टली उसके बिना आंसर नहीं आएगा. हियर इज योर आंसर और आई वुड रादर कंसीडर इट इन दिस वे 1/12. सो हर एक 12 में से एक बार का चांस है मेरे पास में ये आने का. हर 12 में से एक बार का चांस है आने का. कैसे? ये अपने को भी पता ही है यहाँ पे से कि भाई कैसे हो सकता है ये चीजें. एग्जैक्टली क्योंकि 6 के जो 6 टर्म्स है और 5 के जो 6 टर्म्स है उसी में से ही आने वाली है चीजें. कोई भी इसी में से ही आने वाली है चीज. ओके. सो एग्जैक्टली सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट. अब यहाँ पे मैंने इसलिए तुमको तभी बोला था कि सिंगल डाइस थ्रो करना और डबल डाइस थ्रो करने में जमीन आसमान का फर्क है. सिंगल डाइस थ्रो करने में 6 आउटकम रहते हैं, डबल डाइस थ्रो करने में 36 आउटकम रहते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड जब अपन मोर देन 10 निकाल रहे हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कंसिडरिंग द इवेंट्स. मोर देन 10 बोला है, नॉट एटलीस्ट 10 बोला है. मोर देन 10 बोला है तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. वी कैन नॉट इंक्लूड 6 और 4 और 6. Okay, so that is how you solve the probability. Now, moving ahead to the last question of the basic simple probabilities part is that a card is drawn from an ordinary pack of cards and a person bet that it is a spade or an ace. What are the odds against his winning this bet? Against बोला है इसके winning के. ऐसे कितने odds है? मतलब odds as in वो पूछ रहे कि इसके विनिंग, इसके अगेंस्ट कितना है चांसेस, मतलब इसका हारने का चांस कैसा है. यही पूछना चाहते हैं वो लोग अपने को, है ना, कि व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग दिस बेट. वेल इट्स सिंपल. अपने पास में लेट मी जस्ट फर्स्ट क्रिएट सम स्पेस. ओके, हियर आई हैव सम एक्स्ट्रा स्पेस. सो देयर वर टोटल 52 कार्ड्स. ओके, 52 कार्ड्स. नाउ अभी उन्होंने क्या बोला है कि पर्सन बेट कर रहा है दैट इट इज ए स्पेड. वेल फॉर स्पेड हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? 13 कार्ड्स आर देयर एंड दैट टू दे आर ब्लैक रहते हैं स्पेड्स अपने. क्या रहते हैं? ब्लैक. हाँ, ये कालापान होता है स्पेड यानी, जहां तक मेरे को याद है. ठीक है. ओके, ये 13 हो गए. नाउ नेक्स्ट उन्होंने बोला है एक तो वो स्पेड दो चीज पे बेट कर रहा है वो. एक तो स्पेड आएगा या तो फिर वो क्या बोल रहा है कि एस आएगा. क्या आएगा? एस यानी इक्का जिसको बोलते हैं ना अपन, ये पत्ता रहता है ऐसा, यहाँ पे ए और ए लिखा होता है.
ठीक है। अब वो हार्ट रहेगा तो ये ऐसा हार्ट शेप में आ जाता है, ठीक है। डायमंड रहेगा तो डायमंड रहेगा तो ये डायमंड, इसको हिंदी में ईट भी बोलते हैं हम लोग, ईट, ठीक है। फिर वो ये फ्लावर के जैसा भी रहता है कुछ, तो ये क्लब हो जाता है आई गेस। और स्पेड, आई कैनॉट ड्रॉ द स्पेड, आई कैनॉट, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, सो उसने क्या बोला है कि एक तो वो स्पेड पे बेट करेगा या तो फिर एस पे बेट करेगा। अब एस मैंने कितनों के ड्रॉ किए, मैंने एस हार्ट का भी ड्रॉ किया, मैंने एस डायमंड का भी ड्रॉ किया, मैंने एस ये क्लब का भी ड्रॉ किया, और एक यहां पे जो था ये जो स्पेड का था, है ना, स्पेड का। अब थिंग इज, मतलब इसका मतलब क्या होगा, एस कितने रहेंगे मेरे पास में, 4 एस रहेंगे मेरे पास में। कितने एस रहेंगे, 4 एस रहेंगे आउट ऑफ दिस 52 कार्ड्स। और द थिंग इज दैट वो टोटल किस पे बेट कर रहा है, 13 पत्ते में से कोई एक पत्ता आ जाए या तो 4 पत्ते में से एक कोई पत्ता आ जाए। बट द कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज दैट, द ड्रिल इज दैट, द थिंग इज दैट, जब वो स्पेड पे लगा रहा है पूरे 13, तो ये 13 में ये वाला एस ऑलरेडी इंक्लूड है, ये वाला एस ऑलरेडी इंक्लूड है। सो जब ये बात कर रहा है एस की, और जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा इसके एस की, तो मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 एस कंसिडर करूंगा, बिकॉज ये एक एस इसमें का ये 13 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो नाउ टोटल इसका सैंपल स्पेस था 52 का, और इसमें से इसके फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए, 16। क्यों, ये 13 प्लस 3, एस 4 नहीं लेंगे, एस सिर्फ 3 लेंगे। क्यों, क्योंकि जब ये बेट लगा रहा है 13 स्पेड, तो 13 स्पेड में से एक स्पेड उसका एस है, यानी इक्का है, और अब इक्का अगर उसका स्पेड का ऑलरेडी आ चुका है, तो वो बाकी के 3 इक्के के ऊपर भी बेट लगा रहा है, यानी क्या, हार्ट का, डायमंड का और क्लब का, एंड दस उसका टोटल आउटकम हो जाएगा। और अब आई कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और एस, एस फॉर स्पेड, ए फॉर एस, and that will be equal to since the total number of outcomes are 52 and my favorable case are 16, hence giving me 8 26 4 13 exactly 4 by 13, and that is very logical, exactly logical चीज है वो, है ना, exactly logical चीज है वो। So इसका ऑड क्या है अगेंस्ट विनिंग द बेट, इसका ऑड क्या है अगेंस्ट द विनिंग द बेट। सो आई कैन डिस्ट्रीब्यूट, आई कैन रीराइट दिस 4 by 13 as, I can rewrite this 4 by 13 as 9 plus 4. I can rewrite this 13 as 9 plus 4. अब 9 plus 4 इसलिए बोला गया है, 9 plus 4 इसलिए बोला गया है, सी अगर इसका ऑड, मतलब इसका ऑड क्या है विनिंग का, ऑड अगेंस्ट द विनिंग द बेट, अगेंस्ट इसका ऑड अगेंस्ट द विनिंग द बेट क्या है, 9 to 4। ये ऐसा क्यों लिखा गया है मैंने, ये ऐसा क्यों लिखा गया है, इट्स जस्ट बिकॉज कि हर 9 केस में उसके पास में 4 केस है जीतने के, ऑड अगेंस्ट विनिंग द बेट, उसके अगेंस्ट में कितना है, 9 है, जीतने के अगेंस्ट 4, मतलब 9 टाइम्स हार सकता है तो 4 टाइम्स जीत सकता है वो। ये हो गया ऑड अगेंस्ट विनिंग द बेट, ऑड अगेंस्ट विनिंग द बेट। इसके ऊपर अपन और अच्छे से चर्चा करेंगे, एक्चुअली मैं इसको डिटेल में अभी इसलिए नहीं समझा पा रहा हूं क्योंकि वो एक अलग से टॉपिक ही है, वो पता नहीं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ गया। आई गेस वो ये सिर्फ इसके कंसर्न में टॉपिक, ये वाले एग्जाम्पल के कंसर्न में टॉपिक लिया गया है वो, बट उसका फोकस मेन यहीं पे था कि यहाँ पे लोग 16 लेते या 17 लेते, उनको वही चेक करना था। बट ऑड अगेंस्ट में की बात कर रहे, पूछ लिया है तो मैंने तुमको बता दिया है, ऑड अगेंस्ट द विनिंग बोला है तो 9 to 4 आएगा। 9 to 4 यानी क्या, उसका हारने का चांस 9 का है 4 के कंपैरिजन में। ओके, 9 to 4 यानी कि इसे ये 4 यहाँ पे और ये 4, अगर ये 4 और ये 4 मैच हो गया तो बेसिकली तो वो 100% जीत रहा है, बेसिकली वो 100% जीत रहा है। बट अगर सिंस बाकी का कंसिडर करेंगे तो उसका ऑड अगेंस्ट विनिंग इज 9 to 4। ओके, सो दैट इज हाउ यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। और इसके ऊपर फिलहाल इतना फोकस मत करो, वी विल अराइव एट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, मैं फिर से ये एग्जाम्पल पे रिविजिट करूंगा। एनीवेज, सो ऐसे ही यही तरीका है बेसिकली प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने का। इट्स रियली सिंपल। दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू।